Hello, Acho. Let's take a given question. The question says a 10 centimeter air column is trapped inside the tube having uniform area of cross section by 6 centimeter of Hg and is placed horizontally to the plane. Calculate the length of air column when the tube is placed vertically with open and up. Option 1 given a 9.26 centimeter, option 2 10 centimeter, option 3 10.25 centimeter, option 4 11.5 centimeter. So to understand this question, we need to understand about the concept of barometer basically. So barometer basically it is a setup we can say to calculate the atmospheric pressure. So let's say we have a setup, just we are summarizing the things in which a mercury has been filled, right? Or is may agar if we filled a YouTube sorry a tube with mercury and we insert this tube inside this, so we can say, and here we have the scale for calibration just to measure the height up to which the mercury has been filled in this. So it is हमें it has been found that कि ये जो mercury यहाँ पे कुछ fill हुई इसके अंदर, but ऊपर का कुछ section it remains we can say यहाँ पे कुछ vacuum रह गया, ठीक है? It is a torricellian vacuum भी हम इसे कहते हैं. So this measured we can measure this height of the mercury जहाँ तक वो mercury fill हुई है इसके अंदर. So we can say let's say यहाँ तक mercury fill हो गई. And this is the horizontal level of the mercury we have shown over here. ठीक, तो यहाँ तक मर्क्यूरी जो फिल हुई उसको हमने मेजर कर लिया बाय द स्केल, जो कि कैलिब्रेटेड स्केल यहाँ पे लगी होती है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से we know कि at every point on the horizontal level of the same liquid pressure remains the same. So अगर हम दो पॉइंट कंसिडर करें so यहाँ पे प्रेशर सेम होगा. So let's say ये हमारा पॉइंट 1 है and this is our point 2. So pressure at 1 will be equals to pressure at 2. Pressure at 1 will be nothing but the atmospheric pressure क्योंकि वो open है to the atmosphere. So atmosphere will be acting जैसे हम मान रहे हैं P naught, ठीक है. एंड P2 की अगर हम बात करें तो P2 पे जो प्रेशर होगा दैट विल बी ड्यू टू दिस हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम, जिसे हम कहेंगे रो जी एच बेसिकली, जो कि वी कैन सी इट इज़ द प्रेशर हेड और गॉज प्रेशर भी जिसे हम कहते हैं, राइट. वेल डेंसिटी रो इज द डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी विच इज 13,600 kg per meter cube. G is acceleration due to gravity, h is the height. So at sea level we have found कि जो h है basically, so ये जो result हमें मिला है इसी से we calculate the atmospheric pressure. So at sea level it has been found कि जो h है that is the height of the mercury column, it comes out to be 76 centimeter of mercury, right. So when we substitute all the values, हमें pressure की जो value मिलेगी P naught, it comes out to be 1 atmosphere. तो P naught when substituted, G की value, H की value and rho की value that is 13,600 kg per meter cube. ये density of mercury which is the densest liquid. So in this situation P naught की जो value है it comes out to be 1.01 10 raised to 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं विच इज़ द 1 एटमोसफियर, इसको हम 1 एटमोसफियर कहते हैं, ठीक है. सो 1 एटमोसफियर ऑफ प्रेशर करस्पॉन्ड टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी नीड टू कीप इन माइंड. तो 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी उतना ही प्रेशर एक्सर्ट करता है जितना कि एक एटमोसफियर एक्सर्ट करता है. सो दैट इज व्हाट द कंक्लूजन फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन सी. अब यही रिजल्ट वी विल यूज टू ट्राई एंड एनालाइज द सिचुएशन. सो हमारे पास एक ट्यूब गिवन है. फर्स्ट इट इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली, कुछ इस तरीके से प्लेस्ड थी, और उसके अंदर 10 सेंटीमीटर एयर इज बिन ट्रैप्ड. ये कुछ इस तरीके से 10 सेंटीमीटर एयर ट्रैप्ड है इसमें, ठीक है. अब यहाँ पे वी कैन सी कि हमसे बोला जा रहा है हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया बाय 6 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, यानी कि 6 सेंटीमीटर ये एच जी की हाइट हमें गिवन है, राइट. सो अगर हम बात करें एक पॉइंट, अगर हम कंसिडर करें P1 एंड ये तो आउटर सेक्शन है तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा. सो यहाँ पे हम क्योंकि दोनों लिक्विड सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी इक्वल्स टू P1, राइट. P1 विल बी इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें पता है 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी होता है, ठीक है ना. सो दैट इज व्हाट द थिंग वी कैन राइट फ्रॉम हियर. अब अगर सेकंड केस में हम इसको वर्टिकली स्ट्रेट कर दें, कुछ इस तरीके से हम इसको स्ट्रेट वर्टिकली कर दें, सो इन दैट सिचुएशन वी कैन सी. अब हमसे पूछा जा रहा है कि एयर कॉलम कितना होगा अंदर, सॉरी हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द एयर कॉलम, यानी कि अब हमें यहाँ पे लेंथ L2 कैलकुलेट करनी है. यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर एच जी है, 6 सेंटीमीटर है. यहाँ पे अगेन इट इज P एटमोसफियर,
यहाँ पे अब हम प्रेशर मान लेते हैं P, क्योंकि P2 मान लेते हैं, P2 अलग हो जाएगा क्योंकि अब दोनों का हाइट अलग हो चुकी है। सो P2 को अगर हम देखें, सो P2 अगेन बाय गॉज प्रेशर, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। सो P2 को क्या हो जाएगा वैल्यू, P2 विल बी इक्वल्स टू P एटमोसफियर प्लस ऑफ 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg. P atmosphere is 76 centimeter of Hg plus 6 centimeter of Hg will corresponds to 82 centimeter of Hg, यानी कि ये वैल्यू मिल रही है हमें P2 की। अब हमें P1 P2 दोनों ही मिल चुके हैं। नाउ वी कैन यूज द इक्वेशन दैट इज PV equals to P1 V1 is equals to P2 V2. Since pressure and volume are inversely related, so we can have this value. So यहाँ से अब हम लिख सकते हैं P1 into V1 को हम लिख सकते हैं, area of cross section will be the same, A1 into A into L1 and that will be equals to P2 into A into L2. A cancel हो जाएगा, P1 हमें मिलेगा 76 into L1 हमें मिलेगा, L1 is been given as 10 centimeter, right? So सारी ही values हम सेंटीमीटर में रख देते हैं। P2 यहाँ पे हमारे पास है 82 into L2 हमें फाइंड करना है। सो फाइनली वी हैव द वैल्यू ऑफ L2 as to be 760 by 82 and that value comes out 9.26 centimeter. So this is the answer to the question जो कि मैच होगा हमारा ऑप्शन 1 के साथ। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।